ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ کیا امریکی ووٹر صدر ٹرمپ کے نظریے کو رد کر رہے ہیں؟ اور شمالی کوریا کے معاملے پر امریکی وزیر خارجہ اور وائٹ ہاؤس میں ایک بار پھر اختلاف۔ آج کے پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ مسلمان ممالک یروشلم کے معاملے پر متفق لیکن متحد کیوں نہیں؟ ان اعلان الرئيس ترامپ بان القدس هي عاصمة اسرائیل۔ دلی میں اردو کا جشن اور منٹو۔ ہندوستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، چیخ کے چلاتے نعروں کے بیچ کئی سوال تھے۔ اور کتنی کافی اچھی صحت کے لیے کافی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالے کچھ ہی ہفتوں میں 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ ان کا انتخاب ایک حیران کن پیش رفت تھا، لیکن اب امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی تبدیلی رونما ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس کی تازہ ترین مثال ہے امریکہ کی جنوبی ریاست الاباما سے سینٹ کے الیکشن میں 25 سال بعد ریپبلکنز کی شکست۔ ندیم یعقوب اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ندیم، سینٹ الیکشن میں شکست سے صدر ٹرمپ کے لیے کیا نئے چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ جو الاباما میں سینٹ کا انتخاب تھا، اس میں جو ٹرمپ مخالف امیدوار کی جیت ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے نیو جرسی اور ورجینیا میں جو گورنر کے انتخابات ہوئے ان میں بھی ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ جو نتائج ہیں، یہ ٹرمپ مخالف جو پالیسیاں ہیں، ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں ان کے مخالف رد عمل کا اظہار ہے۔ جو گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے جو ایک ٹیکس ریفارمز کا بل وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، جو کانگریس میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں دونوں جماعتوں کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اس کو سراہتے ہوئے انہوں نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ اس کو کرسمس سے پہلے منظور کریں، کیونکہ یہ صدر کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ مگر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اس پر ووٹنگ کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جنوری میں جب ڈگ جونز حلف اٹھائیں گے تو سینٹ میں جو ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے وہ کم ہو جائے گی اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ الاباما کے جو الیکشنز ہیں اس پر تجزیہ کار اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آئیے اس بارے میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ریاست الاباما سے سینٹ کا انتخاب جیتنے والے ڈیموکریٹک امیدوار ڈگ جونز کے حامی خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ ان کے مخالف ریپبلکن امیدوار روئے مور نے ابھی تک شکست تسلیم نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے جونز کو مبارکباد دے کر انہیں وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی ہے، پر اس سے قبل صدر نے کہا، میری خواہش تھی کہ ہم یہ سیٹ جیتتے۔ بہت سے ریپبلکن اس بارے میں ذرا مختلف سوچ رکھتے ہیں اور وہ اس نتیجے سے بہت خوش ہیں، مگر پارٹی کا لیڈر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سیٹ جیتنی چاہیے تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ریاست الاباما میں جیت سے بہت خوش ہیں، جہاں روایتی طور پر ریپبلکن پارٹی کو حمایت حاصل رہی ہے۔ اگر آپ تمام چیزوں کو اکٹھا کریں، پارٹی بیس میں جوش، جوانوں اور دیہی علاقوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے حمایت میں اضافہ، اس کا مطلب ہے ہمارے لیے حالات سازگار ہیں۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ الاباما میں ڈگ جونز کی جیت سے سیاسی ماحول میں ہلچل رہے گی، کیونکہ دونوں جماعتیں آئندہ برس کانگریس کے انتخابات پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اگر میں ریپبلکن پارٹی کی سینٹ، ایوان نمائندگان، گورنر یا ریاستی مقننہ کے انتخابی مہم چلا رہا ہوتا تو یقیناً بہت فکر مند ہوتا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی لہر چل پڑی ہے جس پر ڈیموکریٹس کا نام لکھا ہے۔ ڈگ جونز کی جیت کے بعد امریکی سینٹ کی کل 100 نشستوں میں سے 49 ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس آ گئی ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو صرف 1 نشست کی اکثریت حاصل رہ گئی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کے لیے قانون سازی مزید مشکل ہو جائے گی۔
امریکہ کے سیاسی پس منظر میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے اس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، اور ایک تازہ سروے کے مطابق جو کہ مونموتھ یونیورسٹی نے کیا ہے اس کے مطابق اس سال کے اوائل میں جو صدر کو ناپسند کرنے والوں کی تعداد تھی وہ 46% تھی، جس میں اضافہ ہوا ہے اور اب وہ 56% تک پہنچ گئی ہے۔ جی ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ندیم۔ نومبر سے اب تک 3 مختلف انتخابات میں جو ووٹرز نے ان امیدواروں کو شکست دلائی جنہیں صدر ٹرمپ کی حمایت حاصل تھی، اس سے وہ صدر ٹرمپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اسی بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر سے، جو ادارے کے ڈیموکریسی پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ John Fortier, welcome to View 360. So 3 candidates who had been endorsed by President Trump lost their elections. What does this say? What are voters trying to tell President Trump? One, presidents tend to lose seats at elections at midterms anyway. President Obama lost those seats. 2, the president is not so popular these days. His popularity has dropped since his election. And 3, especially in the case of Alabama, the Republican Party had a very flawed candidate with many scandals there. And that dragged down the party in a state that any Republican really should have won a seat in, a very strong Republican state. So John Fortier یہ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن یعنی وسط مدت انتخابات جو ہم دیکھیں گے کہ اگلے سال ہوں گے، ان سے پہلے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ان میں عام طور پہ پریزیڈنٹس کی پارٹی جو ہوتی ہے وہ سیٹیں لوز کرتی ہے۔ صدر اوباما کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی سے کنٹرول ریپبلکن پارٹی کے پاس آ گیا تھا تب بھی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسرا یہ بھی مسئلہ تھا کہ جو کینڈیڈیٹ جس کو صدر ٹرمپ کی حمایت حاصل تھی ریپبلکن الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں الاباما میں، وہ اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی بہت سے مسئلے تھے، اور یہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کے خلاف سیکشل ہراسمنٹ کے الزامات سامنے آ چکے تھے۔ آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا، روئے مور ان کا نام تھا، اور ان کے خلاف چونکہ ایسے الزامات سامنے آ چکے تھے اس لیے بھی ووٹرز کا ان میں اعتماد کچھ کم تھا۔ How much does President Trump's endorsement mean at this moment? How much weight does it carry for voters? Well, I think President Trump still has support in certain parts of the electorate, especially working class white voters, who some of them he may have actually helped in Alabama, even though the candidate lost. But certainly President Trump has a very great difficulty with the more educated voters in his own party, in the Republican Party, and certainly he has inspired Democrats to show up at the polls in great numbers. They are motivated to vote against President Trump and his agenda. So John Fortier یہ کہتے ہیں، انہوں نے جیسے پچھلے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ صدر کی اپنی مقبولیت بھی اس وقت کم ہے، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس وقت صدر کی حمایت کتنی اہمیت رکھتی ہے ووٹرز کی نظر میں کسی بھی امیدوار کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو صدر جو سفید فام ووٹرز ہیں ان کے درمیان صدر کی حمایت اب بھی اہمیت رکھتی ہے، لیکن جہاں تک پڑھے لکھے ووٹرز کا تعلق ہے تو وہ صدر ٹرمپ کو، چونکہ ان کی جو انڈورسمنٹ آتی ہے، ان کی جو حمایت کسی امیدوار کے لیے آتی ہے، اس کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور ان تک پہنچنا صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو صدر کے مخالف پارٹی ہے، اس کی جو ووٹر بیس ہے وہ بھی اس وقت اس میں زیادہ انرجی نظر آ رہی ہے۔ You mentioned white voters. How important is race in America's elections at this point of time? Well, it is important. African American voters, of course, were a big supporter of Democrats generally, and of President Obama in particular, and they did not support President Trump. We saw in the Alabama election that they came out in very strong numbers. Their turnout was much higher than expected, much higher than white voters. So if they turn out like they did for President Obama, then President Trump and Republicans will have some problems in elections going forward. So ریس کی یعنی نسل کی اپنی اہمیت ہے امریکہ کے انتخابات میں، اور جو سیاہ فام ووٹرز تھے وہ خاص طور پہ اس انتخاب میں، جو الاباما کا انتخاب تھا، اس میں بڑی تعداد میں سامنے آئے، اور ان کا ووٹ آگے بھی جا کے اہمیت رکھے گا۔ Would it be fair to say that the electorate is divided along racial lines at this point in America? That whites tend to vote conservative, and minorities and women also, and especially women of color, tend to also vote with Democratic Party. Is there a racial divide in America now? No, I think we've had a racial divide for a while. African American voters have been strongly Democratic for a generation or two. New immigrant groups, Hispanics and other immigrants, are about 2/3 voting for Democrats, 1/3 for Republicans. And the white vote is split. Republicans have a stronger hold in the white vote, and Donald Trump especially in the white working class vote. So there are divisions, but the white vote is not as divided or is not as united for one party as the minority and immigrant vote. So نسل کی جان فورٹر کہتے ہیں کہ امریکہ کے انتخابات میں ایک عرصے سے ہی اہمیت رہی ہے۔ جو سفید فام ووٹرز ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف تو ووٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ہی بلاک میں نہیں ہیں، ان کے بھی کچھ جو حلقے ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ
वोट करते हैं, लेकिन जहाँ तक जो माइनॉरिटीज़ की बात है, जिनमें तारकीन वतन शामिल हैं, जिनमें नस्ली अक़लियतें शामिल हैं, वो उनकी बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 2/3 जो वोट बैंक है उनका वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ ही जाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कैरेक्टर of a candidate. Last year we saw that President Trump, he was facing allegations of sexual harassment, but still he went ahead and won the presidency. This time we saw that in Alabama, Roy Moore, even though he was accused of sexual harassment, he was able to continue his campaign, but then in the end he did not win. So what about these kind of allegations and the candidate's character? Well, the allegations against Donald Trump almost brought his campaign down near the end. I think many people thought that would keep him from winning the presidency. He did not. He survived and won the election. But we have a new climate with Harvey Weinstein and a number of people across politics, celebrities, other things, raising this issue to a new level. So I think the president will be under more pressure to answer some of the questions that were raised during the campaign. All right. So जहाँ तक एक उम्मीदवार के कैरेक्टर की बात है, हमने देखा कि सदर ट्रंप पे पिछले साल ये इल्जामात उनकी कैंपेन के दौरान सामने आए थे कि उन्होंने खवातीन को जिनसी तौर पे हरासा किया, लेकिन और इसकी वजह से उनकी कैंपेन जॉन फोर्टियर ने बताया अभी कि डिरेल होने वाली थी, बहुत नुकसान होने वाला था, लेकिन बहरहाल वो जीत गए. इस मरतबा जो अलाबामा से रॉय मोर की कैंडिडेसी थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा, इसी वजह से सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जामात की वजह से. और उसकी बड़ी वजह ये भी है जो हम अपने प्रोग्राम में भी कवर करते रहे कि इस वक्त अमेरिका में जिनसी तौर पे खवातीन को हरासा करने का जो मामला है वो बहुत गर्म है. उसके बारे में खुल के बहस की जा रही है और बहुत से मुख्तलिफ मर्द जिन पे ऐसे इल्जामात सामने आए हैं उनके करियर इस वक्त पटरी से उतर गए हैं. तो अलाबामा के कैंडिडेट पे भी जो ये इल्जामात थे उसका उन्हें नुकसान ही हुआ. जॉन फोर्टियर, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रेकिंग दिस डाउन फॉर अस. वी रियली अप्रिशिएट दिस. Thank you. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $700 अरब के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2018 की मंजूरी दे दी है. इस बिल में पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ शामिल है, लेकिन उसमें से आधे यानी $35 करोड़ उस सूरत में अदा किए जाएंगे जब अमरीकी वज़ीर दिफा ये तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ काबिल इत्मीनान कार्रवाई कर रहा है. अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस और उनसे पहले एश्टन कॉटन ने ऐसी तस्दीक करने से इनकार कर दिया था, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान एक अहम पार्टनर है, लेकिन अगर उसने मुल्क के अंदर कारफरमा दहशतगर्द ग्रुपों के साथ रवाबित बंद न किए तो वो अपने इलाके का कंट्रोल गंवा बैठेगा. दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम को रोकने की हिकमत अमली पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान एक बार फिर इख्तलाफ साफ नजर आ रहा है. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने 2 रोज़ कबल ही वाशिंगटन में कहा था कि अमरीका शुमाली कोरिया के साथ बिला शराइत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अब व्हाइट हाउस के एक आला ओहदेदार ने कहा मुज़ाकरात तब तक नहीं हो सकते जब तक शुमाली कोरिया अपना रवैया बेहतर नहीं करता. इससे पहले भी सेक्रेटरी टिलरसन जनूबी कोरिया के दौरे पर थे जब सदर ट्रंप ने ट्विटर पर कहा था कि वो शुमाली कोरिया के मामले में सिफारती कोशिशें करके वक्त ज़ाया कर रहे हैं. और इस खबर समेत पाकिस्तान और दुनिया भर से अहम खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां बहुत सी मुनफरिद वीडियोस भी आपके लिए मौजूद हैं. और यरूशलेम से मुताल्लिक OIC के इजलास में 2 अहम अरब लीडर्स की गैर मौजूदगी क्या इशारा देती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर. और दिल्ली में उर्दू ज़ुबान की शान में होने वाले जश्न रेख्ता में भी आपको ले चलेंगे, मगर पहले देखते हैं दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम और दिलचस्प खबरों की झलकियां वर्ल्ड व्यू में. डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार के फौजी क्रैकडाउन के पहले एक माह में कम से कम 6,700 अफराद की हिलाकत के शवाहिद मिले हैं, जिनमें तकरीबन 730 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं. दूसरी जानिब म्यांमार ने खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के 2 सहाफियों को रखाइन रियासत में रिपोर्टिंग पर गिरफ्तार कर लिया है. रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सालाना न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि वो आइंदा साल मार्च में होने वाले सदारती इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे. वो अब तक 2 मरतबा सदर और 2 मरतबा वजीर आजम का ओहदा संभाल चुके हैं. सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में पुलिस के तरबियती मरकज पर खुदकुश हमले में कम से कम 17 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं. हमले की जिम्मेदारी अस्करियत पसंद ग्रुप अल-शबाब ने कबूल कर ली है. हॉलीवुड की बड़ी प्रोडक्शन कंपनी वॉल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन की जानिब से फिल्म स्टूडियो 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीदने के मुआहदे पर इत्तफाक राय हो गया है. मुआहदे के तहत 21st सेंचुरी फॉक्स की टीवी सीरीज और फिल्मों के तमाम इख्तियारात डिज्नी को हासिल होंगे. अमेरिका की जानिब से यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम करने के खिलाफ गजा में मुजाहिरों और वहाँ से इसराइल पर रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने गजा के साथ सरहद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है. यरूशलेम से मुताल्लिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन के इजलास में कुल 48 मुल्कों के रहनुमाओं और नुमाइंदों ने शिरकत की और ये मुत्तफ़क़ा ऐलान किया कि यरूशलेम को फ़लस्तीन की रियासत का दारुल-हुकूमत करार दिया जाए. इस मौके पर ईरान के सदर हसन रूहानी तो वहाँ मौजूद थे, लेकिन सऊदी अरब और मिस्र
दो अहम अरब मुल्कों के कायदीन इजलास के लिए नहीं आए। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कॉफ़ी का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले मशरूबात में होता है। इस वक्त भी साकिब ख़त्म कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी, लेकिन बहस आमतौर पर यह की जाती है कि इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं या फिर नुकसानात। आज अच्छी खबर यह है कि कुछ फ़वाइद के बारे में मज़ीद पता चला है। बरतानिया की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग रोज़ाना कॉफ़ी के 3 या 4 कप पीते हैं, जैसे साकिब, उनमें ज़ियाबतस, दिल की बीमारियों और कुछ इक़साम के कैंसर का इम्कान कम हो जाता है। मतलब कॉफ़ी में मौजूद कैफीन निज़ाम हज़म की कारकर्दगी 3 से 11% तक बढ़ा देता है और जिस्मानी कारकर्दगी 11 से 12% तक बढ़ जाती है। तो जनाब, दिन में कॉफ़ी के 3 से 4 कप पिए जा सकते हैं। सो आई एम ऑन अ गुड ट्रैक। यू आर ऑन अ गुड ट्रैक, लेकिन ये हेल्थ एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है हमारी तरफ से। आप अपने डॉक्टर से या मौलिद से ज़रूर मशवरा कीजिए, क्योंकि हर किसी का जिस्म कॉफ़ी को और दीगर मशरूबात को भी, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको एक ही तरह से एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ज़रा देख के, ज़रा हाथ हौला रखें। 2 कप होते हैं तो 4 कप की इजाज़त है, तो कभी कभी 3 हो जाते हैं। वाल कॉफ़ी के साथ साथ सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट का भी अपना ही मज़ा होता है, और ड्राई फ्रूट तो यहाँ भी मिलता है, मगर पाकिस्तान में बहन भाइयों के साथ मिल बैठकर चलगोज़े और ड्राई फ्रूट खाने का जो मज़ा है वो मैं मिस ज़रूर करता हूँ। खासतौर पर उनके छीला हुआ ड्राई फ्रूट खुद चुरा के खा लेने का जो मज़ा है ना, वो डेफिनेटली अपनी जगह पे है। लेकिन इस मज़ेदार स्नैक के साथ हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार भी जुड़ा है। तो आइए चलते हैं लाहौर और देखते हैं कि ये लजीज मेवे आप तक कैसे पहुँच रहे हैं। साल का गर्म हिस्सा हयात अपने आबाई शहर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मजदूरी करके गुजारता है। शदीद ठंड में उसका काम बंद होता है तो वो रोजगार कमाने लाहौर चला आता है, जहां इसका काम चलगोजे की भुनाई करना है। कश्मीर से आया हूँ मैं, ड्राई फ्रूट का काम करने लाहौर में आया हूँ। रोज़ की 7-8 बोरियाँ काम करता हूँ, 1500-1600 दिहाड़ी बन जाती है। सेटरिंग का काम करते हैं, सर्दियों में वो काम सही नहीं होता है, इसलिए इधर आ जाते हैं। 3 महीने में हम खा पी कर 1.5 लाख रुपया कमा लेते हैं। लाहौर में बादामी बाग और 2 मोरिया पुल के मरकज में लगी भट्टियों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के देही इलाकों से है, जिनका काम खुश्क मेवाजात की सफाई, चुनाई और भुनाई है। यहाँ इन दिनों व्यापारियों का खूब रश लगा है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से अपना माल लाते हैं। चला से हम 30-40 बोरी तक इतना चलगोजा लेके आते हैं। चलास में भट्टी या शटी नहीं है, इधर से माल थोड़ा थोड़ा करके हम उठाते हैं, फिर इधर लाते हैं, इधर स्टोर में रखते हैं। इसके बाद हम इधर से स्टोर से लेके इधर यहाँ आते हैं। 2 बोरी 5 बोरी किसी को चाहिए हो तो हम इसको बुनाई करके देते हैं। कोई कच्चा लेके वो खुद बुनाई करता है। हमारा ज़्यादातर माल बाहर जाता है, चाइनीज़ जाता है, यूरोप जाता है, और थोड़ा थोड़ा माल हमारा यहाँ बिकता है लाहौर में। सितंबर से में शुरू हो जाता है, फरवरी में तकरीबन मार्च में एंड हो जाता है हमारा ड्राई फ्रूट का काम। पिस्ते में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं, 50 किलो का बैग होता है, और चलगोजे का 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं एक बोरी का तकरीबन। मूंगफली का तकरीबन 40 से 45 मिनट में लग जाता है काम उसका। लाहौर के बाहर से लोग भी काफ़ी काम करवा रहे हैं। तकरीबन 800 रुपया बिस्ते के बैग के ले रहे हैं, 2500 रुपया चलगोजे की बुनाई ले रहे हैं हम, और फिर मूंगफली का तकरीबन 500 रुपया ले रहे हैं बुनाई।
लाहौर की अकबरी मंडी में भी इन दिनों काजू को बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल में पकाया जा रहा है। तैयार होने के बाद ये मेवाजात मुख्तलिफ मार्केटों में फरोख्त होने पहुंच जाते हैं। दिल खुश हो गया देख के, लेकिन थोड़ी जेलसी भी हुई है कि जिनके पास ये ताज़ा ताज़ा मेवे हैं हम उनके पास क्यों नहीं। चलगोज़े नहीं मिलते यहाँ पे बस, और बाकी सब कुछ मिल जाता है। चले जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मुसन्निफ सादत हसन मंटो की जिंदगी और उनके अफसानों पर सरमद खूसट की फिल्म मंटो बैरून मुल्क कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब टीवी सीरियल के तौर पर पाकिस्तान में नशर की जा रही है। दूसरी जानिब मंटो पर ही भारतीय अदाकारा नंदिता दास ने भी फिल्म बनाई है जो अगले साल के वस्त में रिलीज होगी। और दिल्ली से रितुल जोशी हमें लेकर जा रही हैं उर्दू जुबान के फरोग के लिए होने वाले जश्न रेख्ता में, जहां नंदिता दास और इस फिल्म में मरकजी किरदार निभाने वाले अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। दिल्ली के जश्न रेख्ता में ये अदाकारी का अदब को सलाम था। सादत हसन मंटो को पहली बार बॉलीवुड के पर्दे पर उतार रही नंदिता दास और उनके मंटो यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस महफिल में मंटो को फिर से जिंदा कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसी अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ धड़ क्यों मर रहे थे। 4 साल मैंने उनकी जिंदगी के लिए हैं जो हम दोनों मुल्कों के लिए भी बहुत ही अहम 4 साल थे, यानी पार्टीशन के 2 साल पहले और पार्टीशन के 2 साल बाद। नेशनल और रिलीजियस आइडेंटिटी को अभी भी उछाला जा रहा है, तो वही सारे मसले बार बार आते हैं। तो कहीं ना कहीं मंटो को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मुझे आज के जो हालात थे उनके लिए कुछ अपना जवाब कहीं ढूंढना था। This is the first discussion that I've ever seen on मंटो और मुझे काफ़ी नॉलेज मिली उनके बारे में जानकर। मंटो का एक बहुत बड़ा फलक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों की आवाम उनको सुनना चाहती है। मंटो आज और रेलेवेंट होता है। मुझे बड़े अफसोस के संग कहना पड़ता है कि मंटो जो तोबा सिंह की हालत हुई थी वो हम सब लोगों की होती जा रही है। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। जश्न रेख्ता में मंटो का जिक्र भले ही बॉलीवुड के बहाने छिड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई ये भी साफ होता गया कि मंटो के अल्फाज के नश्तर आज भी लोगों के सीने में वैसे ही उतरते हैं जैसे 70 साल पहले उतरा करते थे, और शायद यही उनकी कभी खत्म न होने वाली शोहरत का राज भी है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। मंटो के बारे में हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ख्यालात सुने और देखना यह है कि वो मंटो का किरदार कैसे निभाते हैं। बहुत इंटेंस एक्टर हैं और बिल्कुल डूब कर अदाकारी करते हैं। बिल्कुल तो स्क्रीन पर लगा भी कि वो काफी मंटो से मिलते जुलते ही नजर आए। और जहां तक जश्न रेख्ता की बात है, इसकी अपनी हिस्ट्री भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये अब से तकरीबन 4 साल पहले शुरू हुआ था और एक कश्मीरी, भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने ये शुरू किया और उनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। उनको उर्दू नहीं पढ़नी आती थी, उन्होंने अपने शौक से बड़ी उम्र में जाके उर्दू पढ़ना सीखा। फिर उसके बाद उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की जिसका नाम ही है रेख्ता, और उस वेबसाइट पे बहुत ज़बरदस्त उर्दू का मवाद शाया होता है। आप पढ़ सकते हैं पुराने शोरा को भी, और बहुत सी ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। वहीं से उन्होंने फिर उस फेस्टिवल, उस वेबसाइट की जो एफर्ट थी उसको एक्सपैंड करके इस फेस्टिवल में बदल दिया। और इस फेस्टिवल में पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, भारत से भी बड़ी बड़ी शख्सियात इसमें शिरकत करती हैं, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका से भी इस फेस्टिवल को लोग अटेंड करने जाते हैं जिनको उर्दू से मोहब्बत है। और कल जब हम इस स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे ये भी पता चला कि रेख्ता उर्दू को कहते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत सारी नाम है रेख्ता, उर्दू को रेख्ता भी कहा जाता है। स्टोरी करते हैं तो हमें खुद बहुत सी चीज़ों का इल्म होता है और इसी तरह हम खुद भी सीखते रहते हैं। वेल, ये था आज का व्यू 360 शो में शामिल रिपोर्ट्स दूसरों से शेयर करने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू, जहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे बातें भी कर सकते हैं। बिल्कुल, सारा ज़मान और साकिब को अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।